the tsunami of 26 December 2004 left layer of salt over a huge number of fields in Tamil Nadu. This salt had made the field useless for farming for several months. तो जैसे कि एक एग्जांपल है, सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 में तमिलनाडु में, और उस सुनामी की वजह से, क्योंकि सुनामी किस में आती है, ओशियंस में आती है, तो वहाँ पर सॉल्ट था, तो बहुत सारा सॉल्ट जो है किनारे आ गया था, वहाँ के फील्ड्स में बहुत सारा सॉल्ट इकट्ठा हो गया था. Farmers in Andhra Pradesh have been sent to jail for not being able to pay back their loans. They had suffered a big loss in farming. और जो आंध्र प्रदेश के फार्मर थे उन्हें जेल तक भेज दिया गया था, क्योंकि वो जो है लोन पे नहीं कर पाए थे. जो भी उन्होंने अपना फार्मिंग के लिए लोन लिया था वो लोन तक वो चुका नहीं पाए थे, उसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था. क्यों? क्योंकि फार्मिंग में उन्हें लॉस हो गया था. The huge debt they had taken drove a number of farmers to suicide. The government made efforts to help by employing people on a food for work program by which they would dig canal, make reservoir and plant trees. It also promised the farmer help in getting their debt repaid. In 2005, the rain finally came and the situation in Andhra Pradesh has started improving. According to government figure, 1,50,000 farmers have died between 1997 to 2005. The farmers and the government are now working together to the water supply to the field. तो जिसकी वजह से जो जेल गए थे उसकी वजह से ये जो लॉस हुआ था फार्मिंग में सुनामी की वजह से तमिलनाडु और आसपास आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ कई फार्मर्स ने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया था. हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है इस फील्ड में, बहुत सारे प्रोग्राम ला रही है, उन्हें जॉब वगैरह प्रोवाइड करा रही है और बहुत सारी स्कीम भी ला रही है, जिसके तहत जैसे कि वो कैनाल बनवाते हैं, रिजर्वायर बनवाते हैं, ट्रीज प्लांट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड कर पाए, है ना. तो इस वजह से 2005 में फिर क्या हुआ, 2004 में सुनामी आई थी, 5 में फाइनली जो है रेनफॉल हुआ और रेनफॉल की वजह से सारी सिचुएशन पहले की तरह आ गई. लेकिन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1997 से 2005 के बीच में 1,50,000 फार्मर्स जो है वो मर गए थे. लैंडलेस लेबर. All kind of farmers need land to grow crop or raise animals. Some farmers own the land they are tilling. Others take the land on rent from which landowner and give him an annual rent or part of the produce depending on what their agreement is. Most farmers in India own less than an acre of land. They are poor and heavy debt. A number of farmers who have lost their land go to work on other people's field as landless labor. तो लैंडलेस लेबर क्या होती है? जो कि खुद के लैंड है, वो तो फार्मर अपना लैंड में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मर और मोस्टली इंडिया में फार्मर जो हैं उनके पास लैंड नहीं होते, तो वो लैंड को किराए पर लेते हैं, जिसके पास लैंड होते हैं, और किराए पर लेकर फार्मिंग करते हैं. अब सोचिए वो रेंट पर ले रहे हैं लैंड को और फिर उसके बाद भी उन्हें लॉस हो जाए तो फिर वो कर्जा उन पर बढ़ता चला जाता है. तो ये होते हैं लैंडलेस लेबर. Seasonal migration. Farmers should practice forestry, animal rearing, fishing, poultry and horticulture apart from grain farming so that they can fall back on other means of income in case of a drought. Most farmers who practice subsistence farming travel to cities in search of job in the season when crops do not grow. From the time of sowing to the time of harvest, these farmers stay in the village tending to their crop, especially at the time of harvest. A number of farmers who have lost their land also tend to return to their village to help out with the harvest and make some extra money in this way. A very sad thing happened as a result of this seasonal migration. The children of farmers frequently end up missing school. A number of them eventually drop out and stop studying. तो सीजनल माइग्रेशन क्या होता है? सीजनल माइग्रेशन का मतलब है कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब खेती का टाइम आता है तो वो अपना विलेज में, जब हार्वेस्ट का टाइम आता है, बोना है, काटना है फसल को, तो वो विलेज में स्टे करते हैं और फिर काम करने के लिए शहर में आ जाते हैं, जॉब ढूंढने के लिए शहर में आ जाते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं.
तो ये सारी दिक्कतों में उनके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो उन्हें अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये होते हैं सीजनल माइग्रेशन। Variation in food choices. As we have studied in previous chapter that our food habit are changed now, changing food habit is not good for health. It is also create a problem for farmers because this leads to number of farmer opting to plant cash crop on their cropland instead of the basic items such as cereals, vegetables and pulses. Cash crop like tobacco, sugarcane and cotton are grown for direct sale rather than for the farmer's personal use. By growing cash crop, farmer make a little more money than they would otherwise, but they end up spending more money on buying food to feed themselves and their family. तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो है फूड हैबिट्स हमारी चेंज होती जा रही हैं एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हम फार्मर्स के पास चॉइस होती है, कुछ तो वो ग्रेन क्रॉप होती है और कुछ होती है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में जो है वो आ जाते हैं टोबैको, शुगर केन, कॉटन, जो कि डायरेक्ट सेल किए जाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में। और वो क्या करती है, जैसे कि शुगर केन से क्या बनता है, चीनी बनती है, और टोबैको और भी कंपनीज जो है खरीदती हैं, फिर उसे मॉडिफाई करके टोबैको को फिर मार्केट में लाया जाता है। तो इनकी डायरेक्ट इनकम हो जाती है, डायरेक्ट कैश इन्हें मिल जाता है। Shortage of food. The farmer working on other land work in the field to grow crop. For all hard work, they get very little. So little that they cannot even buy enough rice to feed their family. Some months they do not get any work at all. Then they have to eat leaves and roots from the jungle. Their children remain hungry and sick. Sometimes they die of hunger. Most rice grows in Kalahandi district. Rice is even sent to other state from here. Many times the rice that keeps lying in the godown gets spoiled. जो फार्मर वर्क करते हैं दूसरे लैंड में, अपना फील्ड में जो क्रॉप उगाते हैं, वो सभी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत से बहुत कम जो है फल मिलता है, बहुत कम रुपए उन्हें अर्निंग होती है। तो इसकी वजह से वो अपनी फैमिली के लिए जो है अनाज नहीं जुटा पाते हैं, अपनी फैमिली का पेट नहीं भर पाते हैं, और इसकी वजह से जो है वो आगे के टाइम में काम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो वो आगे वर्क भी नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, लीव्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, उनके बच्चे लीव्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं। तो ऐसे ही कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जो है ग्रो किया गया था। मोस्ट ऑफ द राइस ग्रो इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, और राइस इवन वहाँ से दूसरे स्टेट में भी गया था। बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये लोग जो है हंगर से मर भी जाते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे जो गोडाउन है उनमें हमारा अनाज सड़ता रहता है और लोग भूखे मरते रहते हैं। Even though our country has the capacity to produce enough food, many cannot afford to buy it because they are poor and unemployed. Even though our country has the capacity to produce enough food, many cannot afford to buy it because they are poor and unemployed. Another major issue is that our population is growing fast and traditional farming method cannot produce enough food for everyone. Natural disasters like floods, earthquakes, drought, and famines add to the problem. When a large number of people are starving because they do not have enough to eat, we say that there is a famine. Famines may be caused by climatic disasters such as drought or flooding, as well as by damage to crop by pest or disease. इवन थ्रो आर कंट्री, जो हमारी कंट्री है वो इनफ फूड जो है प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई लोग जो है भूख के कारण जो है अपना मर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक तो इशू ये है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लैंड कम होते जा रहे हैं, इसलिए खेती कम होगी, लैंड होंगे तो खेती होगी। तो पॉपुलेशन इज़ अ मेजर इशू, और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड जो है उससे ये सारे जो है पूर्ति नहीं की जा सकती। पॉपुलेशन ज़्यादा है, और अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग भी आजकल चल रही है, जो लोग पुअर हैं वो एफर्ड नहीं कर सकते मशीन वगैरह, तो वो ट्रेडिशनल फार्मिंग के कर रहे हैं फार्मिंग। और कुछ नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया,
सूखा पड़ गया, तो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से भी जो है फसल खराब हो जाती है। और फिर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो खरीद नहीं पाते राशन, क्योंकि महंगा हो जाता है राशन, जब फसल खराब हो जाती है तो राशन महंगा हो जाता है और गरीब लोगों तक वो नहीं पहुंच पाता है। A drought happens when water level in the ground, lake, reservoir and rivers go down as a result of lack of rain. Crop fail and people and animal die of thirst, starvation and malnutrition. Soil dry out and are blown away by wind. Sometimes drought lasts only for a few weeks or a month. At other times they may drag on for years. Flood and earthquake destroy crops and cropland. Human action often has a role to play in the development of natural disaster and famines. For instance, Bengal famine. तो ये जो ड्रॉट आता है, ड्रॉट किसकी वजह से आता है? जब बारिश कम होती है उसकी वजह से ड्रॉट आता है, या फिर कई सालों तक बारिश नहीं होती, जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो डाउन हो जाता है और पानी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से फसल खराब हो जाती है। और जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, पानी की कमी से एनिमल्स भूख के मारे मरने लगते हैं, चारों तरफ तबाही होने लगती है। और ह्यूमन बींग्स क्योंकि खेती भी नहीं कर पाते, पानी भी की दिक्कत की वजह से फिर कुपोषण जो है वो दिखने लगता है। ऐसे ही अलग टाइम पे जैसे फ्लड, अर्थक्वेक है, नेचुरल डिजास्टर है ना, ये भी ह्यूमन एक्शन की वजह से ही आते हैं। नेचुरल डिजास्टर ह्यूमन जहाँ छेड़छाड़ करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्या जो पेट्रोल डीजल वगैरह इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। एसी का ज़्यादा यूज़, मोबाइल का ज़्यादा यूज़, तो ये जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये कहीं ना कहीं कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो उसकी वजह से भी जो टेम्परेचर है वो अर्थ का बढ़ता जाता है और नेचुरल डिजास्टर जो है आ जाते हैं। वेस्टेज ऑफ फूड, we should only put as much food on our plate as we can eat. Wasting food is wrong. Nearly 6 million people starve in the whole every day, and hunger kills 12 million children worldwide year. If we only buy or serve as much as we can eat, we could make food available to others who. तो वेस्टेज ऑफ फूड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जितना आपको खाना है आपको उतना ही अपनी प्लेट में लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो वो खाने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि हम वेस्ट करते हैं इस वजह से उनको नहीं मिल पा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अमंग पीपल, द गवर्नमेंट नाउ हैज़ अ पब्लिक सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ग्रेन टू पीपल इन आइटम इन द टाइम ऑफ ड्रॉट। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या करती हैं, जब भी वो सूखे वगैरह का टाइम पड़ता है, ऐसा कोई विपत्ति आती है, तो वो जो है लोगों को राशन बांटते हैं। Grains are brought from farmer in the open market and stored in a granaries or sold through fair price shop at less than actual price। तो जो भी actual price होता है उससे कम price में जो है वो बेचते हैं। These grain must be stored well or else rat and other rodent may get into the sack. They must kept dry as moisture can lead to the growth of fungus in the store। जब ये स्टोर किया जाता है तो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि वहाँ पर रैट, स्नेक, ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि वो सब खराब कर देंगे। या फिर मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो फंगस है वो ग्रो हो जाएगी उनमें, तो भी जो अनाज है वो खराब हो जाएगा। अर्लियर ऑल हाउस होल्ड वर कवर्ड इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राशन कार्ड सिस्टम। तो स्टार्टिंग में तो जितने भी घर थे सभी को ये कार्ड दिया गया था, राशन कार्ड, जिसके थ्रू पब्लिकली जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन अब नाउ ओनली पुअर फैमिलीज आर कवर्ड। जो पुअर फैमिलीज हैं केवल उन्हें ये कार्ड दिया जाता है। चिल्ड्रन आर गिवन मिड डे मील एट द गवर्नमेंट स्कूल। और जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे होते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए एक सिस्टम है मिड डे मील का, तो उन्हें स्कूल में ही खाना दिया जाता है, एक बैलेंस डाइट दी जाती है। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 आर गिवन सप्लीमेंट्री प्राइमरी। जो प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं उन्हें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराती है हमारी गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट प्रयास तो काफ़ी करती है लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर लोग इतने जागरूक नहीं है कि वो अपने हक को ले सकें, है ना। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।